करते हैं। Now this तुम्हारा केस है एज 15 years, heavy menstrual bleeding since menarche. Okay, sir. And she complains she feels tired and weak. Sir, after mutual introduction and taking demographic by data, I will ask my patient about duration, onset, amount of bleeding, any clots associated, any history of and the amount pad soaked, whether partially or fully soaked, and any association with dysmenorrhea and intermenstrual bleeding, and any history of bleeding disorder, like any easy bruisability, any history of coagulopathy, and bleeding from nose, mouth in her, and any history of right upper quadrant tenderness and yellowness of eyes, and drug used like blood thinners or any OCPs, and any history of PCOS, weight gain, and loss, fatigue, constipation or cold intolerance, and any family history of bleeding disorder, and any history of any pressure symptoms, loss of weight, loss of appetite, and past medical history, including any cardiac disease, diabetes, hypertension, and cardiac disease, and past surgical history, allergies, socioeconomic, and then I will do her examination, in which I will ask in which I will see the general look of my patient, and then I will check BMI, vital signs, and pallor, jaundice, thyroid. I will palpate thyroid for any nodules, and then I will check breast, chest, and cardiovascular examination. In abdominal examination, I will after inspection, in which I will see for any scar marks, and any other and hernia orifices, and then I will palpate for any masses, visceromegaly or any mass palpable, and then I will or any tenderness. Sir, I have done with my history. Finish. Ji, an examination. You have done that in 3 minutes. Okay, go on. In investigations, I will do her complete blood count with hemoglobin with date for hemoglobin, TLC, and platelets, blood sugar random, hepatitis B surface antigen at HCV, urine routine examination, blood group with Rh factor, and also I will do her PTA-PTT and PTA-PTT, and then factor 8 and factor 9. क्या जी, ये क्या बोला है? सर फैक्टर 8 और फैक्टर 9. अच्छा, then I will do I will counsel my patient very empathetically, and then according to history and examination, I will correct her anemia, and by giving her oral hematinics, and if my patient has history of any bleeding disorder, I will prescribe oral contraceptive pills, and factor 8 if any deficiency of factor 8. सर अल्ट्रासाउंड पेल्विस भी इसमें वो बताना था इन्वेस्टिगेशन. चलो हो गया अल्ट्रासाउंड जी. बात खत्म हो गई. अभी भी है आपके पास 2 मिनट. मैं पूछूं कि I take you back. If a young girl age 15
comes to you or she is accompanied by her mother, अक्सर माँ ही लाती हैं, और वो कहती है, माँ कहती है कि जी इसकी मेंसेस बड़े ज्यादा आते हैं और आप और ये सुस्त सुस्त रहती है, तो व्हाट डू यू सस्पेक्ट? सर सबसे पहले तो इसमें जो है वो फिजियोलॉजिकल जो है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी और ओवेरियन एक्सिस जो है वो इमेच्योरिटी की वजह से फिजियोलॉजिकल जो है वो सर वो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। क्या ये क्या बोल दिया आपने? ओवरी में क्या होता है तो हैवी ब्लीडिंग सर होती हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस इंस्टेबिलिटी जो होती है, इमेच्योरिटी उसकी। है? उसमें क्या हो जाता है? हैवी ब्लीडिंग हो जाती सर वो एनोवुलेटरी साइकिल्स होते हैं ना स्टार्ट में। है। तो वो एनोबिलिटी साइकिल जितनी है वो सारे हैवी ब्लीडिंग होती है। सर इसके साथ सर मैं हिस्ट्री में जो है वो एक्सप्लोर करूंगी कि इसको जो है साथ में ब्लीडिंग फ्रॉम एनी अदर साइड ऑफ द बॉडी। नहीं, एक मिनट, आप अच्छे सेंटर में ट्रेन हुए होंगे इस्लामाबाद में, क्या वहां पे कभी आपने ऐसा मरीज देखा नहीं था? 15 साल की लड़की, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, एनीमिक, देखा होगा, जरूर देखा होगा। अच्छा, ये तो ना कहना कि नहीं देखा। जी सर। जी देखा तो उसकी फॉरगेट अबाउट माय पेशेंट, उसकी मैनेजमेंट जनरली क्या थी? आपने एक तो लफ्ज बोला उसका अनीमिया, मैंने करेक्ट करूँ, और क्या थी? सर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। हाँ, ये जनरली दिया जाता था। और जी जी उसका मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन क्या होती थी? सर उसके लिए सर पीटीए पीटीटी भी करवाते हैं और तो सीबीसी वो सीबीसी हाँ, चलो ब्लड कंप्लीट टेस्ट के अलावा और क्या तो होती थी? सर ट्रांजामीन। गुड गुड, शुक्र है। और ओसीपी और सम हार्मोनल साइक्लिकल थेरेपी ये जी देते थे। सर। जी जी तो बस ये यहाँ पे फोकस रखना था आपने। जी सर। आप कि अब मैं जो आपने बोली हिस्ट्री में बता देता। आपने बोला मैं उसका अमाउंट पूछूंगी, उसको पेन या इंटरमेस्ट्रुअल ब्लीडिंग, कोएगुलेशन डिफेक्ट, उसकी आंखें येलो थी नहीं, क्या ड्रग्स ली हैं अब तक, और पीसीओ के उसके साइन तो नहीं है, और फिर फैमिली हिस्ट्री पूछूंगी, फिर ये क्या प्रेशर सिम्टम्स, पता नहीं वो क्या, फिर कार्डियक हिस्ट्री, फिर एलर्जी की हिस्ट्री, ये सारा कुछ बोलती गई आप। नहीं पूछा तो नहीं पूछा आपने एज ऑफ मिनार्की क्या थी, और क्या उस वक्त से ही ऐसे है, और साइकिल की ड्यूरेशन क्या होती है, क्योंकि पहले साइकिल इरेगुलर से होते हैं। यू डिड नॉट फोकस ऑन टू दैट, आप इधर उधर से बड़ा घूम आई। चले, फिर उसका थायराइड भी आपने देख लिया, बीएमआई भी देख लिया, उसके स्कार एब्डोमेन देख लिए। भला स्कार इस 15 साल की लड़की के कितने स्कार आप सस्पेक्ट करते थे? फिर आपने उसका मैस एब्डोमेन भी देखा, टेंडरनेस देखी, व्हाट डिड यू सस्पेक्ट? फिर ब्लड टेस्ट करवा लिए, और एपीटी पीटी पीटीए ये सारा कुछ कर लिया, फैक्टर्स कर लिए, और उसका अल्ट्रासाउंड आपका आफ्टर थॉट आया। अल्ट्रासाउंड पहली दफा नहीं बोला आपने, फिर बोला। फिर उसका ट्रीटमेंट, अनीमिया है तो उसको ओरल ट्रीटमेंट दे दूंगी। आपने कैसे जज कर लिया कि उसका अनीमिया कितना है? और ओरल चाहे वो हीमोग्लोबिन उसकी 4 ग्राम है, वो उसको टायर्ड है, वीकनेस है वगैरह वगैरह, तो आपने ओरल डाल दिया। हर अनीमिया का ट्रीटमेंट ओरल है? नहीं है। नहीं नहीं सर, मैं समटाइम एक हिस्ट्री दूं और उसको मैनेज करूं।
समटाइम्स उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है। तो नहीं 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 नाजिश, ये ऐसा ना करो, पर नहीं ठीक नहीं। फिर ना कोई बीच में बोला कि क्या वो बोलना चाहते थे, क्या कौन बोली? सर मैं डॉक्टर लुबना, सर मैं इस केस को मैनेज करूं? चलो तुम ये सेकंड वॉलंटियर हो। जी सर मैं सेकंड वॉलंटियर हूँ। चलो मैं अब फिर तुमको यही केस देता हूँ दोबारा। लेट्स फॉरगेट कि नाजिश ने क्या कहा क्या सुना, इसी को ठीक है। सेकंड केस बना लेते हैं हम, चूंकि हमारे पास है सर, टाइम। एक मिनट, मैं टाइम देखा है। लुबना, लुबना यही पेशेंट है, मैं फिर बोलता हूँ, एज 15, heavy menstrual bleeding, and she feels weak and tired. Okay. Assalamu alaikum. Sir, after mutual introduction, I will take history, focus history from my patient. I will inquire her about her last menstrual period and मिनार्क I नहीं will कहते, मिनार्क, एक मिनट, मिनार्क नहीं कहते, मिनार्की की। मिनार्की। जी सर। आप सर I will आप गलत बोलते हो, मिनार्क, मिनार्क नहीं है, मिनार्की। जी सर ठीक। Sir, I will take history of her of her last menstrual period. Then I will take history of her previous cycle. Will ask about her age of menarche, duration, frequency, regularity of the cycle, and number of the pads she was using. Now, when I will emphasize when she has noticed a change in her menstrual cycle, then I will take history of the current cycle in terms of amount, duration of the cycle, number of the pads she is using, and is the passage of the clot there or not. Then I will take history of intermenstrual bleeding. History of the dysmenorrhea, either it was a primary dysmenorrhea, and then I will take history of weight gain, acne, excessive hair growth, excessive heat or cold intolerance, any bleeding from orifices or bruises on the body, any family history of bleeding disorder. And then I will inquire her about any history of OCPs intake or a blood thinner agent intake, and blood thinner agent intake. And then, sir, after this, I will briefly inquire about her about past medical, surgical, and social history. Then I will proceed towards the examination. First, from the general physical examination, I will check BMI or body mass index of the patient, and then I will do her general physical examination. I will especially look for the signs of anemia, paleness in her hand, and then the conjunctiva. I will look for the signs of excessive hair growth. I will check hirsutism. I will check bruises on her body, and will do her breast and abdominal examination. Sir, as my patient is unmarried, I will not do her local examination. And then, sir, is there any positive finding in her examination? She looks pale. Nothing Pale, else. okay. So after this, I will proceed towards the investigation of the patient. First, the basic health profile of the patient, in which I would like to know about her hemoglobin level. Good. Sir, उसका hemoglobin देंगे? Yeah. Let's say she 8 grams. 8 grams. Then, sir, I would like to type the hemoglobin. And after the I would like to know about her platelet count and her sir, day 2 hormonal profile, serum follicular stimulating hormone level, serum luteinizing hormone level, and steroid hormone binding globulin level. Then I would like to know about the thyroid function test of the patient, her PT INR, and sir, ultrasound for any structural abnormality. Sir, I have done with my investigation. Then any positive? Very very good. यहाँ abnormality के साथ बोलिए, स्पेसिफिकली बोलिए ना, यूट्रस एंड एडनेक्स। And जी sir, any structural abnormality in the uterus or in adnex? They're good. Good. Everything is normal except hemoglobin is very low. Hemoglobin is low. That's it. Sir, after this, I will counsel the mother that she is having heavy menstrual bleeding along with anemia. And sir, I will reassure her that this is a physiological changes in her daughter. And I will reassure that there is no structural abnormality. Then as her hemoglobin is 8, I will manage her anemia according to the symptoms. Either she is having shortness of breath or dyspnea, or is she presented with only easy plagiability and palpitation. If she is presented with shortness of breath, dyspnea है उसको, tired and dyspnea. Sir, if she is presented with dyspnea, then I will offer her blood transfusion.
and one packed cell volume I will transfuse it after counseling of the patient about the hazards of blood transfusion. And sir, I will also generally after one packed cell volume transfusion, symptoms of the patient resolved, and then I will ask from the patient either they have previously taken oral iron, either she was compliant with the iron, and if she has not taken oral iron previously, then I will give her oral iron. And similarly, for her complaint of heavy and for her hormonal changes, I will give her progesterone tablet, and I will give her tablet Primolet and norethindrone 5 mg in BD dose. In first 3 months, I will give her continuously, and then so that her hemoglobin builds. And then after 3 months, I will give her in cyclical pattern. And sir, after 6 months, I will withdraw the medicine. वेरी गुड, आपने ये सारा कर लिया है नियरली 7-8 मिनट में, और यू पास, यू पास। Thank you, sir. और नाजिश कोई है इसमें ऐसी बात नहीं, आपने नोट किया कि ये लुबना वाज फोकस्ड ऑन टू हर प्रॉब्लम। ये फैमिली इधर उधर लंबा घूम के और ऐरा गैरा कुछ नहीं बोला इसने। नॉर्मली हम ऐसा मरीज देखते हैं बाबा, यंग गर्ल्स ब्रॉट बाय मदर्स के जी इसको जब से बीमारी शुरू हुई है या तो उसके कुछ सबा से हैवी ब्लीडिंग हो रही है और बेचारी ये उसका आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है, ब्लड डिस्क्रेजिया रिलेटेड, और उसका एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करना है और हार्मोन प्रोफाइल करना है, ये 3 बातें करनी। उसके बाद अनीमिया का ट्रीटमेंट देना है और काउंसिल करना है उनको कि कुछ नहीं है, नॉर्मल है, और ये हार्मोन ट्रीटमेंट देना है। और ट्रांसअमीन इन्होंने नहीं बोला, लेकिन उसके बावजूद मैंने पास कर दिया चूंकि बाकी फ्लो बिल्कुल सही थी इनकी। तो उस सिचुएशन में एक आध मिसिंग तो नॉर्मल सी बात होती है, नॉर्मल सी बात होती है। बेसिकली ऐसे पेशेंट का हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन इज ब्लड डिस्क्रेजिया रिलेटेड, उसके बाद हीमोग्लोबिन, उसका पीसीबी, एमसीएससी, ये दो एक लफ्ज साथ बोल दिए जाते कि ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, और एग्जामिनर को बताने के लिए अकेली हीमोग्लोबिन नहीं, साथ पीसीबी, एमसीएससी या फेरेटिन लेवल या कुछ इस तरह से बोल दें टू कंफर्म आयरन डेफिशिएंसी। और उसके बाद एनीमिया करेक्ट करना है, जो उन्होंने बोला लुबना ने कि ओरल आयरन लेती रही है, नहीं लेती रही, और सिम्प्टोमेटिक एनीमिया है, तो फिर इन्होंने ब्लड दे दिया उसको। मुझे वो भी कबूल है, हालांकि जनरली हम यंग गर्ल्स को 8 ग्राम पे ब्लड नहीं देते, लेकिन मैंने कबूल किया क्योंकि इन्होंने कहा वो सिम्प्टोमेटिक है, उसको सांस चढ़ता है। फिर उसके बाद आप अगर ओरल आयरन लेती रही है या इरेगुलरली लेती रही है, पैरेंटल का जिक्र कर देती, और पैरेंटल आयरन कैसे देते हैं और कौन सा कैसे, कितनी देर में रिकवरी हो जाती है, ये थोड़ा सा एक फिक्रा बोल देती। और Sir, with the oral iron and parenteral iron, recovery is the same. ये 2 weeks. तो ये है जो लुबना ने अपनाया इस केस में रोल, और आप इधर उधर बहुत घूमती रही और वहां ऐसे फोकस नहीं थी, तो इसीलिए चूंकि ये फोकस थी 7-8 मिनट में केस मुकम्मल हो गया, मुकम्मल हो गया। तो ये आप क्यों भूल जाते हैं कि आपने ये मरीज कितनी दफा देखे हुए हैं और कैसे ट्रीट किया हुआ है? बाबा वही से ठीक होता है जो आपने किया था। यहाँ आके पता नहीं किधर कुधर फैमिली हिस्ट्री और बहुत कुछ बोला आपने, कार्डिक हिस्ट्री बोली और एलर्जी की हिस्ट्री बोली, बहुत कुछ बोला। रिमेन फोकस जो आप करते रहे हैं। यंग गर्ल्स, टीनेजर्स जो लाई जाती हैं कि सिंस मीनार की हैवी ब्लीडिंग है, आप उसकी ये इन्वेस्टिगेशन करते हो, हीमोग्लोबिन, कंफर्म आयरन डेफिशिएंसी, फिर उसके बाद ब्लीडिंग डिस्क्रेजिया, वो
ब्लड कोएगुलेशन के टेस्ट, तो उसके बाद अल्ट्रासाउंड पे सब कुछ इनका नॉर्मल होता है, तो फिर क्या दिया जाता है? पहले काउंसल किया जाता है, फिर अनीमिया करेक्ट किया जाता है, फिर हार्मोनल ट्रीटमेंट प्लस उनको ट्रांसमीन या कोएगुलेशन की ब्लीडिंग को रोकने के फैक्टर को एक आध प्रिस्क्राइब कर दिया जाता। इन्होंने नहीं बोला था, लेकिन मैंने फिर भी पास किया। सर अस्सलाम वालेकुम। जी सर अगर 15 ईयर ओल्ड्स में हमारे पास ब्लीडिंग डिसऑर्डर आ जाता है, तो हाँ उस जी, पेशेंट तो को हमने कैसे मैनेज करना है? और सर कौन से कॉमन जो है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं जो 15 आप ईयर? नीड नॉट गो, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। आप ये कहिए मैं हेमाटोलॉजिस्ट को मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात कीजिए, अप्रोच करूंगी और वो आइडेंटिफाई करके कौन सा फैक्टर मिसिंग है, अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करेगा। बस होने को तो अनलकीली इस एज में लुकीमिया भी हो जाता है, ब्लड कैंसर। आप लोग इन दोनों ने, लुबना ने कम, लेकिन आदर्श ने ज्यादा मिस किया, वो पाम कॉइन की बात जिक्र न किया। सर पाम मुझे लगा कि हम पाम रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जो है वो फिर पाम कॉइन उसमें लेके जाएंगे। इसमें बची थी तो मैंने सिर्फ कॉइन वाले पार्ट को टच किया, फिर मैंने और पाम वाले पार्ट को नहीं touch नहीं, उसका चूंकि malignancy तो किसी एज में भी हो सकती है। किया। जी सर सर। मैंने पॉम कॉइन जो है उसको फॉलो किया था, उसमें लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ एपिटाइट और वो अच्छी बात है, लेकिन आई फेल्ट कि वो कंप्रीहेंसिवली ना हुआ। जैसे इस पेशेंट में अगर आपने फॉलो किया था, तो उसको ये ना पूछा कि उसको डिस्मेनोरिया है किस किस्म का है, आपने ये लफ्ज इस्तेमाल ना किया, क्योंकि वो जी जी एडिनोमायोसिस और लियोमायोमा के दरमियान फर्क इस तरह से होता है। तो लेकिन ऑन द होल आई फील कि वी हैव डन दिस पेशेंट रादर वेल, के सारे एस्पेक्ट्स इसके कर लिए। चले, अगली वॉलंटियर थी डॉक्टर कुरत। फिर आप लाहौर जी से सर। बोल रही, जी सर। आप कौन से अस्पताल की ट्रेनी हो? जी सर, जिन्ना हॉस्पिटल से। जिन्ना, क्या बात है, भारत जम्मल की? नहीं सर, डॉक्टर फरत नाज की। अच्छा, चले शुरू करते हैं। पेशेंट एज 35, पैरा 3, complains of heavy menstrual bleeding for 2 years. Her menstrual cycle is regular. बोलिए। Assalamu alaikum. After mutual introduction and confirming the information given to me, I will proceed with the focus history regarding her presenting complaint, pattern of the bleeding, associated passage of the clots, duration of the bleeding, pads per day, and comparison with the previous cycles. And then associated symptom of the any pain, dysmenorrhea, dyspareunia, and intermenstrual bleeding or postcoital bleeding, and then any associated mass she felt, and then how much this complaint is affecting her quality of life. Is there any associated symptoms of easy fatigability, palpitation, and shortness of breath? And then I will associated any rule out PCOS like hirsutism, acne, and any cold or heat intolerance to rule out thyroid disease. And then for
any history of drug intake or any medication for this treatment, as she has 2 years. So any history for this, any treatment taken for this medication, and then I will go for the her obstetrical history regarding her mode of the deliveries, any history of the PPH, last child born, and then history of any contraception she is taking till now, and then is she up to date for her pap smear, and then her medical history, is she had any history of diabetes or hypertension, and then any drug allergy. Then I will proceed with the examination. In the examination, by BMI of the patient, pulse, blood pressure, temperature, pallor, thyroid examination, and then chest and breast examination. And then I will para-abdominal examination for any mass in the abdomen, mass in the abdomen. Yes. Sir, Yes. any positive findings in this examination? No, नहीं कुछ नहीं, सब कुछ ठीक. Okay, then I will proceed with the investigation in which I will give the complete blood count, hemoglobin gram per deciliter, TLC, any platelets, and hepatitis B surface antigen, and anti-HCV, and HIV and urine complaint for proteins and RRE, and then pelvic ultrasound for any uterine and adnexal pathology. And then I will go for the hormone profile, in which day 2 LH and FSH, and then I will go for the thyroid profile. हो गया, खत्म हो गई. जी सर. चलो अल्ट्रासाउंड पे उसके आ गया जी कि फाइब्रॉइड्स हैं मल्टीपल, और हीमोग्लोबिन उसकी 10 ग्राम है, और बाकी सब कुछ ठीक. Okay, now I will in management, I will counsel the patient regarding her diagnosis, that she had a multiple fibroid, and it is a benign condition and treatable condition, and I will address the concern of the patient regarding her fertility desires and completion of the family, and how much this what are her concerns regarding treatment options. I will give her the options for in the form of conservative management and the definitive management. In definitive conservative management, I will offer her surgical management in the form of myomectomy, and if she had completed her and another option, if she had not fertility desire, then we can offer her uterine artery embolization, and जी. sir, concern जी खत्म हो गया जी सर. जी. concern आपने वेल इन टाइम खत्म कर लिया, ये एक अच्छी बात है, लेकिन बड़े हैवी हार्ट के साथ मैं कहूँ आप फेल हो गए. जी सर. हालांकि आपने तो वक्त में सारा कुछ मुकम्मल भी कर लिया, सब कुछ ठीक हो गया. पहले तो आपने इसकी ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री ली ही नहीं. You didn't think सर मैंने मोड ऑफ Sickening- डिलीवरी, मैं हिस्ट्री ली थी सर, पोस्ट ऑपरेटिव हिस्ट्री ली थी कि मोड ऑफ डिलीवरीज एंड हिस्ट्री ऑफ एनी पीपीएच और अच्छा, लास्ट फिर चाइल्ड बॉर्न. मैं उसको सुन नहीं रहा हूँगा, लेकिन मुझे लगा कि आपने ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री नहीं ली उसकी. तो
ली है तो अच्छी बात है। फिर नंबर 2, उसका अब तक क्या ट्रीटमेंट उसने लिया है, ये फोकस करके उसने पूछा आपसे? जी सर, मैंने पूछा था एनी ट्रीटमेंट शी हैड टेकन अप टिल नाउ। मतलब फोकस। मे बी ये कि आपने ये बड़ा इम्पोर्टेंट था कि जी सर। अब तक आपने क्या गोलियां खाई, क्या ऑपरेशन हुआ, क्या कुछ किया इसके इलाज के लिए। और सिमिलरली वो एनीमिक तो जरूर होगी, अब तक एनीमिया का इलाज क्या हुआ आपका, मतलब अब तक क्या ट्रीटमेंट हुआ, ये मुझे लगा नहीं कि आपने अच्छी तरह पूछ लिया ठीक है होगा। सर। लेकिन ठीक है सर। यही तो है ना कि एग्जामिनर को लगे भी कि आपने पूछा है। जी सर। तीसरी जी सर। तीसरी बात एक्चुअली आपको फेल करने की, मैंने कहा अल्ट्रासाउंड पे उसको फाइब्रॉइड है, जी सर। बोला ना मैंने। जी सर, मैंने उसके साइज और उसके ऊपर कमेंट नहीं पूछा। साइज साइज और साइट नहीं पूछी। साइज और को छोड़ो, लफ्ज फीगो बोलना था। फीगो सर, फीगो पूछना था, फीगो क्लासिफिकेशन। उत्थे ते तू फेल हुई जी सर, वो मैं बाद में दिमाग में आया था। बाद में, क्योंकि फीगो के हिसाब से इसका फैसला होगा कि क्या वाकई फाइब्रॉइड कॉज कर रही है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। जी सर। जी सर। अगर वो सब सीरियस फाइब्रॉइड्स हैं तो हाउ कैन वी से कि जी ये सब सीरियस फाइब्रॉइड इसका हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कॉज कर रही? नो वे, देयर मस्ट जी बी सर। सम अदर कॉज, नॉट फाइब्रॉइड। आपने प्रिज्यूम कर लिया फाइब्रॉइड, मायोमेक्टमी, जी सर। यहाँ पे फेल हुई आप। यस सर। यस सर। ये है एक्चुअल के फाइब्रॉइड अगर है तो उसका पूछो बाबा, फीगो फीगो फीगो। यस सर। अगर वो फीगो 2-3 कैटेगरी में आते हैं, 1-2-3, फिर तो ठीक है, मुझे छोटा सा फाइब्रॉइड भी है तो मायोमेक्टमी करो। लेकिन अगर वो है ही 5-6-7 बाहर पड़े हैं, कितने बड़े भी हो तो डजंट मैटर, they could not be responsible for her menorrhagia or heavy menstrual bleeding. फिर चलो वो भी मैं माफ कर देता आपको। When it came to treatment, आपने मायोमेक्टमी यूएई बोल दी, बस ये 2 चीजें बोली आपने। पहले उसका मेडिकल ट्रीटमेंट करो, फिर पॉसिबिलिटी अगर उसकी नहीं वो कामयाब होता, फिर वो उसके पॉलिप टाइप का जिक्र कर दो, पॉलिपेक्टमी हम कर देंगे। फिर मायोमेक्टमी का आपने जिक्र कर दिया, ठीक है, हिस्टेक्टमी भी इसमें हो सकती थी। एम्बुलाइजेशन आपने जिक्र बोला, उसके कैंडोमीटर एब्लेशन भी हो सकती थी। आपने कुछ नहीं बोला, आपने 2 चीज बोली बस। जी सर। एक मायोमेक्टमी, इसमें तो सारा ही एप्लीकेबल है बाबा, एज 35 अब। जी सर। मेडिकल ट्रीटमेंट से शुरू करके मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, बेशक जी सर। नहीं लफ्ज बोलो और आगे ना बोलो एनीमिया, लेकिन जी सर। फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट क्या था? पहले तो अगर वो पॉसिबली सब सीरियस फाइब्रॉइड्स हैं, फीगो 6-7 है, तो उनको कहो जी उनका कुछ नहीं करना। पॉसिबली हर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज किसी और वजह से है, जी सर। हार्मोनल है। तो अनीमिया के बाद उसका वो जो पिछले केस में हमने डिस्कस की, वो सारी बातें हो सकती हैं। ओसीपी दिया जा सकता था, ट्रांसअमीन दी जा सकती। जी सर। जी सर। यू एग्री विद मी? यस सर। यस सर। नहीं, ये तो मैं फिर करना चाहूंगा फाइब्रॉइड वेरियस टाइप्स की मैनेजमेंट। मेरा ख्याल अगला हम करें ये इसी को जी सर। रिपीट करके, जी फाइब्रॉइड सर। की मुख्तलिफ शक्लें हों तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जी ये सर। तो ठीक। अगली क्लास का फैसला हो गया, जी लेकिन सर, मैं वॉलंटियर भी कर देती हूँ अगले के लिए। यही किरत क्या बोलती है? जी सर, वन कुरतुलैन सर, सेकंड कुरतुलैन। सर, अगर अभी सर टाइम मैंने है भी तो मैं ये वाला केस करूं।
जी एक केस और भी है अभी तो। सर बल्कि मैंने Just a भी moment, वॉलंटियर Rohit. किया था सर। 2 केस और हैं। सर ठीक मैंने है सर, वो वॉलंटियर फिर किया था एक डॉक्टर मिनट शकीला। ये वॉलंटियर तो पूरे हो गए, अब कौन सी डॉक्टर वॉलंटियर? शकीला सर, डॉक्टर शकीला, शकीला? डॉक्टर शकीला, यस सर। शकीला कहाँ से बोल रही है शकीला? सर रहीम यार खान से। ये रहीम यार खान वाले बड़े तेज हैं। सर मैं भी वॉलंटियर सर, करना आपके साथ चाहती हूँ। रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर सर। मैं आपके लेक्चर आप सुनती हूँ। ये कौन? डॉक्टर सर शाहीन? मैं डॉक्टर शाहीन फ्रॉम कराची। कराची शाहीन। चलो अभी हमारे पास टाइम है, मेरे ख्याल 2 केस हो जाएंगे, दो और करते हैं। सही। चलो शकीला रहीम यार खान। Patient age 45, para 4, complains of heavy menstrual bleeding for last 4 months. सर कब से? 4 months। और उसके साथ उसको severe dysmenorrhea और dyspareunia भी है। ठीक है थोड़ा सर। सा to make it easy for you, let's say कि for 1 year, heavy menstrual bleeding for 1। ठीक है सर, ठीक है सर। चलो Assalamu alaikum. After greeting, mutual introduction, confirming the details, giving in this scenario, inquiring about missing data, then take focus to history. I will inquire about her last menstrual period and whether cycle regular or irregular and duration of current cycles and pattern of the cycle, number of bleeding days per month and number of periods used per day, whether partially or fully soaked and any passage of blood clots, any history of intermenstrual bleeding, postcoital bleeding, and I will also inquire about her previous cycle, the pattern of the cycle, number of bleeding days per month, number of pads used per day, and whether partially or fully soaked, and any previous history of intermenstrual bleeding or postcoital bleeding. Any associated dysmenorrhea and its relation to menstrual cycle, whether it start on the first day of the cycle and remain constant in throughout the menstruation, or एक मिनट, एनी हिस्ट्री ऑफ डिस्मेनोरिया, मैंने तो बाबा बोला है, वो कंप्लेन कर रही है severe dysmenorrhea and dyspareunia। dysmenorrhea type of relationship to menstrual cycle, whether it start on the first day of the cycle, remain constant throughout the menstruation, or onset on first day and maximum in intensity on the last day of this cycle on the menstruation, and are start before the menstruation and relieve after menstruation, and any history of colicky pain, any, and also inquire about her dyspareunia, whether this is superficial or deep dyspareunia, any history of feeling of the mass in the abdomen and special symptoms, any history of drug loss of appetite, weight loss, or feeling of lump anywhere in the body, or drug intake, bleeding from any site of the body like nose, mouth, or any drug intake like anticoagulants or hormonal, or she is practicing hormonal contraceptive methods, and any history of tamoxifen drug use like tamoxifen, and any history of acne, weight gain, hirsutism, headache, nipple discharge, any heat and cold intolerance, and what treatment she took up till now, um, and what workup done up till now, and how her quality of life was affected, and any dizziness, easy fatigability, shortness of the breath. And I will also rule out past obstetrical history and mode of delivery, the outcome, and duration of last child born, and gynecological history, and especially medical comorbidities, and any family history of bleeding disorder and drug allergy, smoking addiction, and socioeconomic support of the patient. Then I will proceed towards the general physical examination, and I will calculate her BMI, check her pallor, any jaundice, any acne, hirsutism, and then do the check vitals,
and do thyroid examination and do systemic examination. On systemic examination, I will check for breast and any nipple discharge, chest examination, and then do the abdominal examination for. On abdominal examination, if for mass, ascites, and visceromegaly, and if any mass is present, then its site size and its mobility, tenderness, surface margin, regular, whether irregular, its mobility and lower limits are reachable or not. Then I will do the local examination, perispeculum examination. On perispeculum examination, I will check for any discharge or bleeding, any mass, and or any growth, and then do the bimanual examination and assess size of the uterus, mobility, any tenderness, any fixation or retroverted, and then we'll do, sir, any positive finding in examination. चलो, see, there was induration on the pouch of Douglas. Uterosacral ligaments, वो वहाँ पे induration. ठीक है सर. अच्छा सर, फिर मैं और आसान कर देता हूँ. Uterus was retroverted and fixed. ठीक है सर. Sir, then I will investigate with, then I will do all the baseline investigations, and I especially I will check hemoglobin, platelet count, PT, APTT, and I will also do the pelvic scan for any uterine or adnexal pathology. सर ये I will also do hormonal profile तो also, like टाइम तो खत्म हो गया, लेकिन thyroid profile. मुश्किल टाइम खत्म हो गया है, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ, ये लंबी हिस्ट्री को भूल जाओ. आउटडोर में तुम बैठी हो, 45-year-old पेशेंट आती है कि मेरे 4 बच्चे हैं, लास्ट चाइल्ड बॉर्न कोई 10 साल पहले, कंप्लेन्स ऑफ हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग 1 साल से, और साथ सीवियर डिस्मेनोरिया, डिस्पायूनिया. तुम्हारे दिमाग में पहला डायग्नोसिस क्या है? Adenomyosis. एडिनोमाइसिस भी हो सकता है. Endometriosis. एंडोमेट्रियोसिस सर. एंडोमेट्रियोसिस नंबर 1 है. यस सर. Because uterus is ligament thickening है. प्लीज आप जरा शकीला की हेल्प करने दो मुझे. पहला डायग्नोसिस तुम्हारे दिमाग में एंडोमेट्रियोसिस आया, राइटली. अब तुम मुझे बताओ, इतनी लंबी तुमने जो हिस्ट्री ली, और मैंने फिजिकल एग्जामिनेशन पे तुम्हारी मदद करने की कोशिश की, यूट्रस रिट्रोवर्टेड फिक्स है, तुमने फिर भी मेरी जो टिप थी तुम्हें या हेल्प थी उसका कोई फायदा ना उठाया. अब तुम मुझे बताओ, ये इतनी लंबी हिस्ट्री लेके क्या तुम एंडोमेट्रियोसिस की हिस्ट्री ले रहे थी? सिवाय तुमने डीप डिस्पायूनिया का जिक्र किया और डिस्मेनोरिया की टाइप कुछ नहीं थी. वो भी वो अच्छा था बात. वो दैट आई लाइक. तो सिवाय डिस्मेनोरिया डिस्पायूनिया के तुम तो गई ही नहीं. बाबा वो 45 साल की औरत है और उसको 1 साल से ये सिम्टम्स हैं. अब तक क्या मेडिकल ट्रीटमेंट लिया, क्या सर्जिकल ट्रीटमेंट हुआ, क्या जो सही इम्पोर्टेंट बात है उस तरफ तो गई नहीं. कहा था what treatment she took and what workup done up till now. वो अगर कहा तो इतने ऐसे कैजुअली कह दिया जैसे तुम ब्लीडिंग डिजीज का पूछ रही थी, जैसे हेडेक पूछ रही थी, एक्नी पूछ रही थी, उसी तरह ये कह दिया तुम. तभी तो गुम हो जाता है आपका इंफॉर्मेशन. फिर ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर नहीं पूछने थे इसमें. मुझे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर चलो पूछ लेते, लेकिन डायग्नोसिस तो तुमने पहले दिन बना लिया, खुद बना लिया और सही बना लिया. जब वो सही डायग्नोसिस, तो एंडोमेट्रियोसिस पे फोकस रखो.
कि उसका क्या क्या ट्रीटमेंट होता है, हम्म उसके सवालात पूछो। उसकी क्या सिम्टम्स होती हैं, उसके सवाल सही पूछो। सही सही, मतलब उसी की ट्रीटमेंट क्या हुई, हाँ, वो उधर फोकस लेप्रोस्कोपी रखो, या हुई थी नहीं हुई तो थी। आप लोग गुम हो जाते हो। बाकी सारी जो 3rd ईयर वाली हिस्ट्री है उसी में सारे सवाल पूछ लिए, एक वही ना पूछा जिसका पूछने वाला था। क्योंकि जिसको एंडोमेट्रियोसिस है, 45 साल उम्र है और उसकी फैमिली कंप्लीट है, उसने कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लिया होगा, कुछ किया होगा अब तक, उसको पूछो जरा, एग्जामिनर को बताने के लिए पूछो कि वो हार्मोनल ट्रीटमेंट जो था कंटिन्यूस था, इंजेक्टेबल था, कितने महीने लिया और ये किया, तो एग्जामिनर को समझ आए कि आप क्या पूछ रहे हो। आपने कहा जी मैंने पूछ लिया, वो उसी तरह पूछ लिया जैसे उसका वेट गेन या वेट लॉस, मुझे तो पता ही न चला। सो ये आदत बनाइए कि जब आपको कोई डेटा प्रेजेंट किया जाए, उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस सोचो फौरन कि इस पेशेंट में ये एंडोमेट्रियोसिस है, फाइब्रॉइड है, पीआईडी है, क्या है, उसके फिर हाईलाइट कीजिए वो सवाल। जी सर। आई एम सॉरी, आप नाराज ना होना मुझसे, ये क्या बैड मूड जी में सर, अभी समझ आ गई ये बात। सबको फेल किए जा रहे हो। नहीं, मैंने पास भी तो किया था किसी को। मेरा ख्याल है मैंने जो पहली लड़की थी लुबना, उसको पास किया था। जी सर, इसने मुझे पास किया। चलो अब एक पेशेंट और कर लेते। सर इसकी ट्रीटमेंट में फिर हम पेशेंट को क्या गाइड करेंगे, इसको एक वही चीज फिर और वही ना, माइंड। आपने इस तरह से ओपन करने के, योर प्रॉब्लम कैन बी ट्रीटेड मेडिकली और सर्जिकली, and if you already had enough of medical treatment, then we'll move on to surgical treatment. Surgical treatment एक्सीजन एब्लेशन। 2-3 फिर choices बोलिए, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या हिस्टेरेक्टमी या जो भी आपने कहना है वो कहिए। वो जी। आता तो सबको, आपको कहते आप नहीं। चलो आगे है शाहीन, आखिरी पेशेंट। जी सर। वही एज 45, पैरा 6, comes to you, complains of heavy menstrual bleeding and post-coital bleeding for 1 year. Heavy menstrual bleeding and post-coital bleeding. सही सर। Sir, first of all, after greeting and तो initial, चलो पहले पहले मुझे बताओ तुम क्या समझी हो इस sir, heavy, इसको क्या है? sir, post-coital bleeding है इनको। post-coital bleeding की हिस्ट्री के साथ आई है और heavy menstrual bleeding और दोनों? heavy menstrual दोनों है सर। बोलो इसको क्या? तो सर heavy menstrual bleeding के तो पाम एंड कॉइन के अकॉर्डिंग जितने भी रीजंस हो सकते हैं उसमें से सॉर्ट अच्छा आउट तो करना है। बोलो, मैं अब छोड़ो, according to what do you think this patient has? सर post-coital bleeding यही बोलने दो, शाहीन को बोलने दो प्लीज, बोलो। सर post-coital bleeding जो है वो indicates polyp and गुड, CSR में भी। हाँ बस ये दो बातें आपने सोची है, अब इनके रिलेटेड सारा आपने चलना है। जी सर। अब मैं आपसे यहीं पे पूछ लूं, पॉलिप की टाइप्स बोलो। सर पॉलिप की टाइप, हाँ, पॉलिप की टाइप्स जो है सर, एंडोमेट्रियल जो है पॉलिप, इट कुड बी पेडिकुलेटेड, इट कुड बी सिसाइल एंड सर्वाइकल पॉलिप सर, जी, and fibroid, if it is pedunculated, it's also
नहीं, आप नहीं, जवाब नहीं दे रही। सर ये मैं कोई और बताऊं? बोले। चल सर मैं मैं बताऊं endometrial polyp सर endometrial polyp could be of four types right but अरे, adenomatous आप सब ना बोलो please। Adenomatous, placental, fibroid, and malignant. एक मिनट, मैं जिसको कहूँ वो बोले। हैं? सर मैं बताती हूँ। आप नाज़िर साहब पहले बोल चुकी हो, जी सर। कोई और बोले। Anybody else? Sir, endometrial origin, placental origin, ये and अच्छा, और नायला नाम की लड़की आई है, नायला तुम बताओ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी सर। सर आपने पहले भी बताए थे 4 टाइप्स ऑफ द पॉलिप, एंडोमेट्रियल और फाइब्राइड पॉलिप, प्लेसेंटल पॉलिप एंड मैलिग्नेंट। वेरी गुड, एक मिस हो गया, 3 बोले आपने, फिर बोलो। सर फाइब्राइड पॉलिप, प्लेसेंटल पॉलिप प्लेसेंटल एंड एडिनोमेटस 3 और मैलिग्नेंट 4 हो गए ना। ये 4 है, ये जी सर। एंडोमेट्रियम के। सर्विस के सर्विक्स के सर्वाइकल पॉलिप, सर्वाइकल पॉलिप, तो उसकी टाइप्स बोलो ना क्या, जैसे ये 4 बोले। सर्विक्स के सर वही है एडिनोमेटियस, फाइब्राइड और सर्वाइकल पॉलिप। लेकिन एंडोमेट्रियम में एक प्लेसेंटल पॉलिप भी होता है जो जी सर प्लेसेंटल बताया। ये है। cervical में नहीं होता ना। हाँ, सर्विक्स में प्लेसेंटल नहीं होता, बाकी प्लेसेंटल नहीं होता। हाँ इम्तिहान में ये एग्जामिनर पूछेगा आपसे अगर पॉलिप का किस्सा आया। सर रिपीट कर दे। एंडोमेट्रियल पॉलिप आर एडिनोमेटस पॉलिप, फाइब्राइड पॉलिप, प्लेसेंटल पॉलिप एंड मैलिग्नेंट पॉलिप। मैलिग्नेंट सर्विक्स में सारे ही हैं स्वाय प्लेसेंटल। So these are the polypi. Right, sir. ठीक, जी अब सर। इसमें सीए सर्विक्स भी शामिल हो गया। जी अब सर। इनके रिलेटेड आपने सवाल पूछे तो आप पास। मतलब हमने कहा ना प्लेसेंटल पॉलिप भी हो सकता है। आप कहिए कि आपकी लास्ट चाइल्ड बर्थ कब हुई थी और ये ब्लीडिंग आपको जो हो रही है कब से हो रही है, एग्जामिनर समझ जाएगा कि यू आर इंक्वायरिंग अबाउट प्लेसेंटल पॉलिप। जी सर। GTN सर। फाइब्राइड पॉलिप है तो ये उसके मतलब पूछेंगे आपको मेंसेस जो है कैसे आते हैं, हैवी आते हैं तो कब से हैवी है, क्या वो ग्रेजुअली ज्यादा हो रहे हैं, और इनके अलावा भी कोई आपको कभी पेन लोअर एब्डोमेन हुई, क्या हुआ क्या नहीं। क्योंकि फाइब्राइड पॉलिप में कॉलिक की पेन होनी चाहिए उसको, यूट्रस इज ट्राइंग टू पुश इट आउट। पेन होती है तो कैसी है, कॉलिक की है, डल है, एब्डोमिनल है, क्या है। अगर इफ यू रिमेन फोकस्ड ऑन टू दीज फिर आप पास हो, फिर आप पास हो। आप वही घूम फिर के कूचे कातल से आए, इधर घूम, ये भी सवाल पूछिए मत, पूछो ये वो सवाल। पहले जो डेटा दिया गया है उसका डायग्नोसिस बनाओ, ये क्या है। अब सारे पेशेंट जो हैं आज के, पहली वो 15 साल लड़की, फिर 35 ईयर ओल्ड, इजी टू मेक ए डायग्नोसिस। पहली में टीनेजर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग मोस्ट कॉमनली क्या होती है, उसके एंडोक्राइन रिलेटेड है, हार्मोन रिलेटेड है, सब कुछ नॉर्मल निकलता है, हीमोग्लोबिन नॉर्मल निकलती है, हीमोग्लोबिन का इलाज कीजिए। और मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो आप लोगों ने बाद में एग्री किया, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलर करने के लिए ओसीपी दे दीजिए, प्रोजेस्ट्रोजन दे दीजिए। आज के शायद लुमना ने उसको प्रोजेस्ट्रोजन दिए थे, वो भी ठीक था, वो भी ठीक था। आमतौर पर हम ओसीपी दे देते। उसके बाद अगला पेशेंट आया
वो सीधा सीधा फाइब्रॉइड का था। उसमें आपने वो जो फाइब्रॉइड का आजकल लफ्ज इस्तेमाल होता है, फीगो फीगो फीगो, वो बोला ही ना। उसकी मायोमेक्टमी होनी है, हिस्टेक्टमी होनी है, क्या होना है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन फीगो। फिर उसके बाद हम आ गए एंडोमेट्रियोसिस पे। साफ 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 उसको डीप डिस्पायूनिया भी है, डिस्मेनोरिया भी है, और हेवी ब्लीडिंग भी है। एंडोमेट्रियोसिस सीधा सीधा केस है। 45 ईयर ओल्ड पैरा 4 कि भाई अब तक तुमने क्या मेडिकल ट्रीटमेंट किया है, पॉसिबली उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट भी हो चुका है, उससे बात आगे को बढ़ानी है। अब फिर आज का ये केस आ गया 45 और उसको हेवी में से पोस्ट क्वार्टर ब्लीडिंग भी है। सो द कॉज मस्ट बी आइदर इन द सर्विक्स और अ पॉलिप। पॉलिप का लफ्ज आया तो आपको ये सारी उसके टाइप्स ये वो आना चाहिए, उसके रिलेटेड आप पूछेंगी उसके। सो बाबा मैं कहता कहता थक गया हूँ ये कि आप उस पर फोकस करो, डेटा जो दिया गया है, इंफॉर्मेशन जो दी गई। इफ यू फोकस ऑन टू दैट, उसकी हिस्ट्री, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके इन्वेस्टिगेशन, उसका ट्रीटमेंट बोलोगे तो आप पास। फिर आपको कौन रोक सकता है? जैसे मैंने वो पहले केस पे उनको पास किया, दूसरी लड़की, हालांकि छोटी छोटी एक दो बातें मिसिंग भी थी। इफ यू गोइंग दैट स्मूथली, फिर कोई एक दो इंफॉर्मेशन मिस भी हो जाए तो वो कोई ऐसी बात नहीं। मैंने आपको शायद एक दफा सुनाया कि मैंने जब प्राइमरी FRCS का इम्तिहान दिया, एनाटॉमी का वाइवा था, आई वाज डूइंग वेल, सारे सवालों के जवाब दिए। तो मुझे वो इम्तिहान में वहां पे एडिनबरा में रोल नंबर नहीं, नाम से बोलते कि डॉक्टर कैन यू आर डूइंग वेल, बट टेल मी, बिल्कुल जंप करके CNS की डेवलपमेंट बताओ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट। उसने ये सवाल बोला तो घंटी बज गई वाइवा की। मैं चुप, कहते यस, मैं कहता बेल इज गॉन, कहता वो हंसा, never mind, but tell me development of CNS. मैं चुप, कहता tell me is it mesoderm, endoderm or ectoderm? मैं हमने बोल दिया endoderm, whereas it develops from ectoderm. बड़ा हंसा, बड़ा big laughter. I said you're right, the bell was gone, so it's okay. तो गलत जवाब भी दो तो सही ना कुछ। If you're done well, तो गलत भी पी जाता है एग्जाम में, कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन चले आज तो टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अगली दफा मैं सिंपली फाइब्रॉइड का केसेस बना के लाऊंगा और इम्पोर्टेंट होगा ये मेरा ख्याल इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको हर तरह का फाइब्रॉइड, हर एज ग्रुप का फाइब्रॉइड, उसकी मैनेजमेंट इम्तिहान में आनी चाहिए। चलो ऑलमोस्ट 3-4 मिनट रह गए, 3-4 मिनट में क्या बात करें, बोलो। Sir, कोई एक सवाल पूछ। as in last case, polyp and CA cervix is expected. तो सर फिर हम पूरा जो है पॉलिप और CA cervix की तरफ ले जाएंगे और फिर उसकी ट्रीटमेंट को मेंशन करेंगे। जी बिल्कुल, आप कहेंगे मेरे पास स्पेक्ट्रम देखूंगी, जी depends what kind of lesion I see. If I see healthy cervix all around, it is likely to be a polyp. right sir. फिर आप खुद ही बोलेंगे the polyp could be coming from endocervix or endometrium. right sir. यहीं पे होंगी तो आप पास हो जाएंगे। सही, टाइप्स डिस्कस करके और फिर अकॉर्डिंगली ट्रीट करेंगे सर। और वो उसकी मैं बायोप्सी करूंगी और देखूंगी वो क्या है, या हिस्टोस्कोपिक
पॉलिपेक्टमी करवा दूंगी, तो जो भी बोलोगे सही हो जाएगा, राइट जो भी बोलोगे सही इंशाल्लाह। राइट चलो जी, ऑल द बेस्ट। फिर इंशाल्लाह अगली Thank दफा you. फाइब्राइड की बात करें। Thank you, sir. Thank you so much. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो, थैंक यू। Thank you very much, sir.